equal to the acceleration of the block coming down. For example, अगर ऐसा है सिंगल पुली है यहाँ पे, ये सारे सिंगल पुलीज के दिखाई दे रहा ये. This is a problem having a fixed pulley. Here if you see, the acceleration of this block in the upward direction will be equal to the acceleration of this block in downward direction. समझ गए? इसका अगर A रहा तो इसका भी A रहता, क्योंकि सिंपल एक ही स्ट्रिंग है, सिंपल कनेक्शन है. ठीक है. हियर इसका अगर एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड रहा तो इसका एक्सेलरेशन A राइट की तरफ रहता. ठीक है. The acceleration of this block, if it is A downward, the acceleration of this block M1 will be A towards right, because there is only one string, one fixed pulley. So that is the situation. Here also all these three blocks will have same acceleration, or their magnitudes of accelerations will be equal. इसका A downward, इसका A towards right, इसका A towards upward direction, right? If M1 is greater than M2, if M2 is greater than M1, then the situation will be like this. But still all three accelerations will have equal magnitudes. Clear? Here also, acceleration of this block, if it is A downwards, then acceleration of this block will be A up the inclined plane. Or if this will dominate, the acceleration of this block will be A down the inclined plane, and the acceleration of this block will be A upwards. And you have to apply the Newton's second law, write two equations and solve. Here we write two equations. For block M1, first equation, for block M2, second equation. And we have two unknowns. One is acceleration and second is tension. Two equations, two unknowns, you can solve. Three equations, three unknowns, you can solve. Four equations, four unknowns, you can solve. Given that those equations are independent. Equations are independent. समझ गए? एक इक्वेशन को सिर्फ 10 मल्टीप्लाई कर दो तो और एक इक्वेशन आ जाएगा, बट वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं रहेगा. It will be the same equation. That means you have to have two independent equations. Okay, anyway, here also, if it is A here in this direction down the inclined plane, this will be A up the inclined plane. तो ये सारे सिंपल थे. अब मूविंग पुली में क्या हो गया? If this block comes down by a distance x, this block comes down by a distance x, तो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कितना रिक्वायर्ड है? इधर एक्स्ट्रा x रिक्वायर्ड है. समझ में आई बात? See, this pink string is going like this. Okay, if this block moves down by distance x, then this pulley also should move down by distance x. So here x and here x, extra pink color string you need to get from some source. Now this string cannot come out of here because it is fixed here. It should totally come from this side. That means this block must move up by 2x. There is no other choice. समझ में आया? क्या में कुछ डाउट है? अगर yes, x से नीचे आया तो ये पुली भी x से नीचे आता, तो इधर x और इधर x, extra string you require. Now this 2x should come from somewhere, right? It cannot come from here. This pulley also cannot move. So the only way is this block must go up by 2x. तो ये extra 2x आपको आ जाएगा. That means if the displacement of this block is x, this will be 2x. That means the velocity, if the velocity of this block is v downwards, then the velocity of this block will be 2v upwards. If the acceleration of this block is a downwards, then the acceleration of this block will be 2a upwards. So इसका 2a लिख दिया, इसका a लिख दिया. अभी equations लिख दो. इसपे what are the forces acting in the direction of a? Okay, first m1 पे लिखो. m1 पे 2a के डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा? t एक्ट कर रहा. Minus m1g equal to m1 into 2a. Similarly, in the direction of a m2g is acting here, against it is 2t equals to m2 into a. Now how to solve these two equations is quite easy. You just multiply 2 here and add, this will cancel and you will get a equals to m2 minus 2m1 by 4m1 plus m2 into g. This is how you solve. समझ में आई बात? अब एक और प्रॉब्लम करेंगे based on moving pulleys, and then we will proceed to other problems. So we have okay, let us do this problem.
करो जल्दी करो, साथ साथ ड्रॉ करो आप लोग भी. हाँ so here also I am giving you a problem related to moving, please. So this is something like this. Okay, suppose this has mass m1 and this has mass m2. Okay, now tell me which pulley is fixed and which pulley is moving here. This pulley is fixed pulley and this pulley will move, correct? Now suppose this pulley has a downward acceleration of a. Suppose this pulley has a downward acceleration of a. What will be the direction of m1? It will be towards right. Towards right. What will be the magnitude of acceleration? थोड़ा सोच के बोलो. 2a रहता. क्यों बोल रहे 2a? Why? Because see, think, अगर ये x से नीचे आ गया तो ये x से बाजू हट जाता, राइट? अगर x से बाजू हट गया राइट में, तो ये x और ये x एक्स्ट्रा पिंक कलर का स्ट्रिंग चाहिए आपको. कहाँ से आएगा? यहाँ से तो आएगा नहीं. तो the only way is this must provide the 2x. That means this must move in this direction with 2x. Are you getting my point? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? ये रहेगा 2a. समझ में आई बात? Okay. Now tell me what about the tensions? Suppose here the tension is T. So in this string the tension is T. तो इधर भी T रहता, इधर भी T रहता. Entire string में क्या रहता? टेंशन T ही रहता. क्यों? Whenever you have massless and frictionless pulley, tension on the string on the either side of pulley will be equal. समझ गए? और ये टेंशन कितना रहेगा? ये टेंशन कितना रहेगा? अगर ये T है तो ये कितना रहेगा? 2 times T. करेक्ट? समझ में आया? अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो. व्हाट इज सेकंड लॉ? जल्दी बोलो. F net equals to ma. अब बोलो m1 के लिए लगाओ. Who is responsible for that acceleration 2a? Which force is responsible for that acceleration 2a? m1 force है. Which force is responsible for that acceleration 2a? 2t. 2t. नॉर्मल 2t है या t है? देखो वहां पे t है. नॉर्मल कैसा होता? क्या वर्टिकल जा रहा? वो वर्टिकल डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है उसका? हॉरिजॉन्टल. तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना रहता. नॉर्मल क्या रहता? वर्टिकल रहता इस केस में. अब बोलो कौन सा फोर्स ऐड कर रहा उस पे? t. 2t ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ t ऐड कर रहा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग लगा हुआ है. तो बोलो फॉर m1 बोलो क्या रहता? t इक्वल्स टू बोलो m1 2a. m1 2a. समझ में आया? दिस इज फॉर m1. m2 के लिए क्या रहता?
तो देखो m2 का एक्सेलरेशन नीचे है, तो हाँ, तो यहाँ पे 2t ऊपर 2t लग रहा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लग रहा फोर्स? नो, mg लग रहा है कि नहीं? m2g नीचे लग रहा, ठीक है। नाउ हु इज हेल्पिंग इन एक्सेलरेशन? m2g, राइट? तो m2g पॉजिटिव लो। हु इज अगेंस्ट एक्सेलरेशन? टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा, तो माइनस 2t इक्वल्स टू m2 into a. Now how to solve this? It's very easy. Substitute this t here. समझ में आया? ये t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? समझ में आई ना बात? ओके, ये इधर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? तो क्या था बोलो? 2 into नो, यहाँ पे m2g, राइट अगेन, m2g माइनस 2 into 2m1a इक्वल्स टू m2 into a. तो a क्या आता बोलो? बोलो। a इक्वल्स टू आफ्टर ऑल रीअरेंजमेंट क्या था? m2g बाय 4m1 प्लस m2। समझ में आया? ठीक है ना? ओके, क्लियर? ओके, लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम्स. We'll do a problem involving a wedge. So we have a wedge here and there is a block on the wedge, and ये जो एंगल है, एंगल क्या लेंगे? अल्फा लेंगे, ठीक है? This angle is alpha and there is a block resting on this wedge, ठीक है? There is a block resting on this wedge. Now generally what will happen? This block will slide down, right? This block will slide down. But if I accelerate this wedge, in this direction, अगर इस wedge को इधर accelerate कर दिए A से, समझ गए? If I push that wedge towards left, what will happen is there will be a pseudo force acting on this block in this direction, right? क्योंकि ये कौन सा फ्रेम हो गया? If you stand on this, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया. एक्सेलरेटिंग फ्रेम में क्या आता? सूडो फोर्स आता. और सूडो फोर्स कितना आता? माइनस एम में आता. कितना आता? माइनस एम में. और ऑपोजिट डायरेक्शन में एम में आता, ठीक है? तो इसके फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये फोर्स और ये फोर्स दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये इधर ही रह जाता, ठीक है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज टुवर्ड्स लेफ्ट so that the block doesn't slip down the plane. The block doesn't slip down the plane. समझ में आई बात? तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है A. एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या है? A है. समझ गए? तो A से जो है ना लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा. Now we will do the problem from the frame of reference of the wedge. We will do the problem from the frame of reference of the wedge. समझ में आया? क्या है frame of reference of the wedge? एक्सेलरेटिंग फ्रेम है और नॉन इनर्शियल फ्रेम है. इसका मतलब we have to consider the pseudo force. Now there are two forces acting on this block. One is a real force. Real force क्या है? weight है उसका. समझ गए? mg. और एक pseudo force एक्ट कर रहा. pseudo force कितना एक्ट कर रहा? इधर ma. If you mention the direction you need not write the minus sign. समझ में आई बात? तो ये क्या है? ma. क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, सूडो फोर्स राइट की तरफ है. समझ में आया? और ये फोर्सेस कौन से फ्रेम से आ रहे हैं आपको? कौन से फ्रेम से आ रहे हैं? ये ब्लॉक के फ्रेम से आ रहे हैं, ठीक है? समझ में आया?
ये ब्लॉक पे ठहर के कर रहे हैं आप प्रॉब्लम, अगर ग्राउंड पे ठहर के करें ना तो ये फोर्सेस नहीं आते, समझ में आई बात? तो आप ब्लॉक पे ठहर के कर रहे प्रॉब्लम, ठीक है, तभी जो है ना आपको सूडो फोर्स दिखाई देता। अगर ग्राउंड पे ठहर के करे तो अलग तरीके से करना पड़ता प्रॉब्लम, बट इट इज इजियर टू डू लाइक दिस। क्लियर? ओके, नाउ टेल मी what are the components of mg? One is normal component क्या आता? mg cos alpha, क्योंकि ये भी अल्फा होता ना, समझ में आई बात? तो ये हो गया mg cos alpha, और एक डाउन द प्लेन क्या आता? mg sin alpha, mg sin alpha। इसको हटा देंगे इधर, हाँ ठीक है। तो ये क्या आता? mg Sir, it's G tan theta. no mg sin alpha। Tell me what is your doubt? Sir, is the answer G tan theta? Yes, answer is g tan theta, right? G tan alpha. Okay, if angle is theta, then your answer will be g tan theta, but here angle is alpha, so answer is g tan alpha. Right, your answer is correct. Now, what about this force? How many components does it have? One in this direction. Clear? This is okay. What about this component? What about this component? See, if this is alpha, this is also alpha. If this is alpha, this angle is also alpha. This angle, ये वाला. One second. This angle is also alpha. Are you getting my point? This angle is also alpha. तो अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता बोलो? ma cos alpha, and this component will be ma sin alpha. समझ गए? ma sin alpha. Now question is this, ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो एग्जैक्टली इधर रहता, इसके ऑपोजिट रहता, समझ गए? Now, in order for these things to balance, what do you need? This and this must cancel each other, right? This and this must cancel each other, because those are the forces that are along the inclined plane. समझ में आई बात? So this force and this force must cancel each other so that the block remains without acceleration, or the block will remain at rest. If it is at rest, it will remain at rest. Along the inclined plane कोई force नहीं लगता इसमें, ठीक है? तो so for the block to remain at rest, what is required? The net forces along the inclined plane must be 0. Do you agree? So net forces along the inclined plane must be 0, right? So what are the net forces along the inclined plane? mg sin alpha down the inclined plane must be equal to mg ma cos alpha up the inclined plane. Are you getting my point? So this is down the inclined plane, this is up the inclined plane. Okay. This is so tell me what is A equals to? Therefore A equals to, tell me, everything will cancel here, right? M will cancel, so G will remain, and this cos alpha will go in the denominator. तो क्या आता बोलो? G tan alpha cos alpha, which is tan alpha. समझ में आया? Okay. Now second question, what will be the normal reaction in this case? What will be the
what will be the normal reaction when the block is balanced. समझ गए? अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है देखो, there are two forces that are acting into the plane, one is ma sin alpha and one is mg cos alpha. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना रहता है यहाँ पे? So every action has equal and opposite reaction, right? So mg cos alpha plus ma sin alpha will be the normal reaction. First it was, see, when the wedge was at rest, it was mg cos alpha. Now because the wedge is accelerating, the pseudo force is acting here. One component of pseudo force is acting here. Another component of pseudo force is acting here. So because of this, ma sin alpha, the normal reaction will increase. Normal reaction will increase. समझ गए? mg cos alpha भी into the plane act कर रहा, ma sin alpha भी into the plane act कर रहा, तो दोनों add up हो जाते. ठीक है, तो दोनों ऐड होके जो है ना, दे आर पुशिंग द ब्लॉक इनटू द प्लेन or towards the plane or normal to the plane. So plane will also react with equal force. That is normal reaction. So what is normal reaction according to this? Normal reaction equals to mg cos alpha plus ma sin alpha. But just now we found out what a was. तो बोलो क्या था? n equals to mg cos alpha plus m g tan alpha into sin alpha. समझ में आई बात? We substituted this and put in different color. This g tan alpha हम लोगों ने substitute किया. समझ में आई ना बात? So a को हम लोग ये substitute करें इससे, ठीक है? Clear? So what is normal reaction? Tell me. mg कॉमन ले लो, क्या था? cos alpha plus tan alpha sin alpha. Tan alpha sin alpha can be written as sin square alpha by cos alpha, right? कैसा है ये? कौन सा cos alpha कैंसिल? ओके, समझ में है ना ये? tan को क्या लिख दिया हम लोग? sin बाई cos लिख दिए, तो sin स्क्वायर अल्फा बाई cos अल्फा आ गया. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता बोलो? mg इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई cos अल्फा. So what is sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा? 1. तो आंसर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज mg बाय cos अल्फा. समझ में आया? ठीक है, क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बोलो. Okay. Now suppose this same situation, suppose situation यही है, but there is a small difference. The difference is this, कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, वो एक्सपेरिमेंट जो है ना एक एलिवेटर में हो रहा. ये एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा? एक एलिवेटर में हो रहा, ठीक है? So I'll put that elevator
एंड एलिवेटर का एक्सेलरेशन है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन है अपवर्ड. फर्स्ट विल टेक अपवर्ड. एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या है? अपवर्ड. नो आई डोंट वांट टू टेक स्मॉल a बिकॉज स्मॉल a इज द एक्सेलरेशन वी आर यूजिंग फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. समझ गए? तो हम लोग इसको कैपिटल ए लेंगे. क्या लेंगे? कैपिटल ए. कैपिटल ए इज एक्सेलरेशन ऑफ द, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द elevator. ठीक है. Now you have to do the problem by standing inside the elevator. तो ये कौन सा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. समझ गए? तो अब इस पे फोर्सेस क्या ऐड करते हैं? सूडो फोर्स भी ऐड करता ना. अच्छा, जब एलिवेटर ऊपर जाता वेट बढ़ता या कम होता? जब एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करता, जब एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करता, if the elevator is accelerating upwards, will the weight increase or decrease? Apparent weight, it will increase. So for the person inside, this weight will not be mg, it will be m. क्या रहता है ये weight क्या रहता है ये? m G plus A. g plus a. This will be m2 g plus a. समझ में आई बात? So a problem is same, everything is same except the fact that the weight will not be mg, it will be mg plus a. ठीक है, समझ में आई ना बात? We have already seen this for the problem in which a man was checking the weight of the block. ऊपर जाते वक्त weight क्या था? mg plus a था. नीचे जाते वक्त weight क्या था? mg minus a था. समझ में आई ना बात? तो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन क्या आता? सॉरी, कैपिटल ए रहना ना. सॉरी, कैपिटल ए बिकॉज दैट इज कैपिटल है ना. ओके, कैपिटल ए. तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स? तो ये ए से ऊपर जा रहा, ए से नीचे जा रहा. सो दिस एक्सेलरेशंस आर विद रेस्पेक्ट टू मैन, विद रेस्पेक्ट टू मैन. ओके, ये यहाँ पे मैन है. मैन कहाँ पे ठहरा हुआ है? एलिवेटर में. तो ये एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू मैन कर रहे हैं. इसका मतलब द होल प्रॉब्लम इज डन विद रेस्पेक्ट टू this elevator only, not with respect to ground, with respect to this elevator only. Your elevator is your frame of reference. ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन a equals to g, क्या लास्ट टाइम आंसर क्या था? m2 minus m1 बाय, बोलो भाई, m2 minus m1 बाय m2 plus m1 इंटू जी था ना. इस बार क्या आता? जी के बदले g प्लस ए. समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर? आया अम्मा समझ में? कुछ भी नहीं. देखो, पहले वेट mg रहता था हर चीज का. अब लिफ्ट ऊपर जा रही है इसलिए हर चीज का वेट mg प्लस ए हो गया. तो आंसर में भी g जहां पे आ रहा है वहां पे g प्लस ए आना. ठीक है. अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही तो क्या आता आंसर? g माइनस ए. तो मैं ये कॉपी कर दे रहा हूँ. देखो, एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट ए का डायरेक्शन कहाँ लेंगे? डाउन लेंगे. ठीक है. तो ये लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन. समझ गए? तो आंसर क्या आता है यहाँ पे माइनस आता. ठीक है, माइनस आता. यहाँ पे भी माइनस आता, इधर भी माइनस आता और इधर भी माइनस आता. समझ में आई बात? ओके, क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का. अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन साइड में है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, समझ गए? लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो देखेंगे क्या होता है. तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये नीचे लिख दो. यहाँ पे जगह नहीं है. ठीक है. अगर ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है ना, अगर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या?
एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है इसका, इधर है सपोज, एक्सेलरेशन लिफ्ट का ऐसा है, ठीक है, समझ में आया? स्पेलिंग लॉन्ग है ना एक्सेलरेशन की। ओके, एनीवे, अब बोलो ये सिचुएशन रहता कैसा पहले, ये बोलो। सिचुएशन रहता कैसा, देखो थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ब्लॉक पूरे सिस्टम पे सूडो फोर्स किधर लगता? लेफ्ट पे रखता ना, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम कैसा रहता मालूम? ऐसा रहता, ऐसा रहता, समझ गए? समझ में आया? और ये जो फोर्सेस है ना इस पे कितने रहते, बोलो बोलो। हाँ बोलो। अच्छा और एक बात, यहाँ पे टेंशन कितना रहता बोलो? 2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g प्लस ए। यहाँ पे टेंशन कितना रहता? 2 बोलो भाई जल्दी बोलो। 2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g माइनस ए। समझ में आया? अच्छा यहाँ पे कितना आता फोर्स, कितना आता? m इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डू यू एग्री? क्यों? क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा फोर्स और m में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ऐड करे तो कैसा करते? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते ना। दोनों पैरेलल रहे तो ए प्लस बी करते, एंटी पैरेलल रहे तो ए माइनस बी करते। जब परपेंडिकुलर रहते क्या करते? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते। तो ये m2 हो जाता। ये क्या होता? m1 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? तो एक्सेलरेशन क्या आता बोलो? ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आता? एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय, बोलो भाई, m2 प्लस m1 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर। समझ गए? और टेंशन कितना आता बोलो? 2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए? क्लियर? देखो ऐसा क्यों हो गया पूरा सिस्टम? क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा, वेट नीचे की तरफ लग रहा और सूडो फोर्स इधर लग रहा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आता, तो सारा सिस्टम इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता। ठीक है, क्लियर? इंसेप्शन में देखा, इंसेप्शन में जैसा होता वैसा होता। समझ गए? क्लियर? अगर उधर मालूम नहीं होता क्यों हो रहा। हाँ तो ये देखो, okay, suppose this man is looking at a block.
This man is looking at a block of mass n. ठीक है, and suppose this lift is moving downward with acceleration a. समझ गए? So what will be the apparent weight of this block? Apparent weight. बोलो भाई, apparent weight क्या होता? हाँ, block according to the observer in frame, observer inside the elevator, क्या होता? mg माइनस a. ठीक है, समझ में आया? m इंटू g माइनस a. Now suppose this elevator is freely falling. Elevator is freely falling. Meaning क्या है उसका? What do you mean by elevator is freely falling? Downward acceleration क्या रहता? g रहता. समझ गए? तो apparent weight क्या रहता? सोच के बोलो. m 0 रहता. m g माइनस a था ना, तो क्या हो गया? वो m g माइनस g हो गया, तो वो क्या हो जाता? 0. समझ गए? सो apparent weight in freely falling elevator is 0. देखो, अगर लिफ्ट गिर जा रही, फ्रीली फॉलिंग है, कट कर दिया लिफ्ट का केबल, समझ गए? तो दोनों हवा में आ जाते ना, ब्लॉक और आदमी दोनों. क्या उठाने के लिए वेट लगता उसको? नहीं, दोनों भी गिर रहे, दोनों भी फ्रीली फॉलिंग है, तो क्या हो जाता? अपैरेंट वेट 0 हो जाता. समझ में आई बात? आप लोग वीडियोस देखे होंगे स्पेस में जीरो ग्रेविटी बोल के, तो जीरो ग्रेविटी में रियल वेट 0 नहीं रहता, अपैरेंट वेट 0 रहता. वाई? जब स्पेस में जाते, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाते, दैट स्पेस सेंटर इज फ्रीली फॉलिंग, द स्पेस सेंटर इज फ्रीली फॉलिंग. पर गिरता नहीं. वो गिरता नहीं? गिरता. क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ये लिफ्ट तो जाके नीचे जमीन पे गिर जाता. ठीक है, जमीन नहीं है, जमीन के अराउंड ही फिरता ना स्पेस स्टेशन. ये अर्थ है ना, स्पेस स्टेशन अर्थ के अराउंड फिरता. समझ में आई बात? अच्छा देखो, मैं बताता हूँ. अगर यहाँ से ड्रॉप कर दिए स्टोन तो ऐसा गिर जाता. ठीक है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके ड्रॉप करे तो इधर गिरता, और थोड़ा ज़्यादा स्पीड दिए तो इधर जाके गिरता. समझ में है? और भी ज़्यादा दिए तो क्या होता? इधर जाके गिरता. और भी ज़्यादा दिए तो 1-2-3 राउंड मार के गिर जाता. समझ गए? मगर एग्जैक्टली कुछ स्पीड दिए इसको, जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते, तो क्या होता? सीधा गिरते गिरते जाके जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहाँ पे आ जाता. ठीक है, फिर जो है ना, गिरता ही नहीं, मगर गिर रहा, मगर जमीन मिल रही नहीं उसको. समझ गए? ऐसा आगे जाके गिरना है, मगर आगे जमीन गोल हो जा रही, तो इसलिए वो आगे जाते ही रहता, मगर कभी गिरता नहीं. बट टेक्निकली इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी ओनली ना. टेक्निकली इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. दैट मीन्स टेक्निकली इट इज लाइक दिस लिफ्ट विच इज फॉलिंग डाउन विथ जी. समझ गए? तो उसमें क्या आता? वेटलेसनेस आ जाता. क्या आ जाता? वेटलेसनेस. समझ गए? तो वो ऐसे ही फिरते रहता. स्पेस स्टेशन ऐसे ही फिरते रहता हमेशा. ठीक है, तो लोग उस पर जाते, स्पेस शटल से जाते, उस पर लैंड होते, उसमें रह जाते. 1-2 साल रहते, 1-2 साल नहीं, 1 साल रहते कम से कम, यानी तो 100 दिन रहते. कुछ लोग 50 दिन रहते, उसी में रहते, खाते पीते उठते. समझ गए? फिर बाद में वापस स्पेस शटल जाता, उसमें चढ़ के वापस आ जाते. ऐसा, मगर वो वैसे ही फिरते रहता हूँ. समझ गए? उसको क्या बोलते? स्पेस स्टेशन बोलते हैं उसको, ISS. समझ गए? क्लियर? ओके. नाउ व्हाट, हाँ, क्या माँ कुछ डाउट है? व्हाट विल हैपन? इक्वल टू क्या आया? 0 आया ना. व्हाट, अच्छा ठीक है. व्हाट विल हैपन इफ दैट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g?
बोलो. So this is called here in the case above. In the case above, apparent weight is it's also called weightlessness. Same for the same reason. We have zero gravity. Gravity बोलते ना, zero gravity बोलते ना उसको. Zero gravity. Is this real or apparent? This is apparent. In space station or when a space shuttle gets into its orbit. इसके डिटेल्स हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं. अराउंड, समझ गए? क्लियर? Yes, sir. So tell me what will happen if the acceleration is like, say, example 2g. What will happen? Pseudo force ऊपर 2mg रहता, नीचे वेट mg रहता, तो वेट ज्यादा किधर लग रहा? ऊपर की तरफ लग रहा. ऊपर की तरफ लग रहा ना. तो क्या ये चीजें नीचे रहते हैं? अभी ये चीजें नीचे रहते हैं? नहीं रहते, इधर रहते हैं ये चीजें. समझ गए? क्लियर? बराबर. तो यहाँ पे अपैरेंट वेट क्या आया था? हवा में लास्ट टाइम थे, लास्ट टाइम हवा में थे, अभी हवा में नहीं रहते. यहाँ पे अपैरेंट वेट क्या है? एम जी माइनस है ना. तो क्या हो जाता है? इम्प्लाइज एम जी माइनस 2g इक्वल्स टू माइनस एम जी. अपैरेंट वेट माइनस एम जी है. समझ में आई बात? अपैरेंट वेट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय माइनस एम जी? वेट बीइंग माइनस एम जी? नहीं भाई, जनरली वेट mg है बोलते. यहाँ पे वेट माइनस mg है मतलब क्या? जनरली वेट डाउनवर्ड रहता, माइनस mg मतलब अपवर्ड रहता. सो माइनस mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, देयरफॉर माइनस mg विल बी upwards. So what will happen if the elevator is moving down with 2g? और यहाँ पे लिखेंगे, देखो, if elevator moves down with an acceleration, no, acceleration 2g तो एक केस है, एग्जाम्पल, greater than g, then the apparent weight becomes upwards और नेगेटिव. जनरली पॉजिटिव जब लेते वेट नीचे रहता, तो नेगेटिव अगर ले रहे तो ऊपर रहता. और यहाँ पे क्या लिखना? इन द अबव केस के बदले यहाँ पे लिखेंगे if the acceleration is equal to g, if the downward so if the downward acceleration of the elevator, जल्दी बोलो, is equal to g, then
द अपेरेंट वेट इज 0। समझ गए? क्लियर? समझ में आया ना? अच्छा, ये कब होता है? ये वेटलेसनेस और नेगेटिव वेट कब आता? जब एक्सेलरेशन नीचे है एलिवेटर का। जब एक्सेलरेशन ऊपर रहता है ना, ऊपर की तरफ, जब वेट हमेशा बढ़ता, वेट हमेशा बढ़ता और कभी भी जीरो वेट आने का चांस नहीं रहता। इट डजेंट मैटर, जी से ज्यादा रहने दो अपवर्ड एक्सेलरेशन या जी से कम रहने दो, वेट तो बढ़ता है नहीं। समझ गए? सो वो भी लिख देंगे यहाँ पे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बोलो elevator is upwards, then weight always increases। कौन सा weight? apparent weight। apparent weight always increases। समझ में आया? हाँ बोलो, क्या डाउट है? ठीक है, ऊपर। हाँ वो तो देखो, वेट पॉजिटिव रहा तो हमेशा नीचे के फ्लोर पे रहता, वेट नेगेटिव हो गया तो रूफ पे आ जाता। समझ गए? अगर वेट 0 रहता ना रूफ पे रहता ना फ्लोर पे रहता, बीच में फ्लोट करता, मतलब समझ गए, कोई कांटेक्ट नहीं रहता। ठीक है, देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन एनीवे। समझ में आया? ओके, अब थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अब नीट में ऐसे प्रॉब्लम्स आते पूरे। ठीक है, अब यहाँ पे एमपीसी वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। हाँ, आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं एक बार देख लो। ठीक है, एडवांस में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं थोड़ा एक बार नज़र डाल लो, तो थोड़ा आइडिया आ जाता। समझ गए? अगर नहीं बोला मैं, लास्ट में परेशान हो जाती। ठीक है, ऐसे भी रहते क्या प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसका क्या है? अल्फा है, इसके ऊपर ब्लॉक है। तो अभी तक कैसा था? ये जो वेट्स था फिक्स्ड होके था, या नहीं तो कुछ एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा था, राइट को या लेफ्ट पे, राइट पे या लेफ्ट पे मूव कर रहा था। अच्छा एक बात बोलो, लेट अस डू ओके। बड़े प्रॉब्लम पे बाद में आएंगे, पहले थोड़े छोटे केसेस देखेंगे। ठीक है, नाउ इसका वेट कितना है बोलो? mg है, और ये क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? क्या फिक्स्ड है भाई? सर देखो, गौर करो यहाँ पे, वेट फिक्स्ड है। वेट क्या है? फिक्स्ड है। समझ गए? और इसका मास m है, इसका मास m है, ब्लॉक का मास m है, इसलिए इस पे यहाँ पे mg वेट आ रहा। इसके दो कंपोनेंट्स रहते, एक mg cos अल्फा, ये mg cos अल्फा होता, और ये mg sin अल्फा होता। mg cos अल्फा को कौन बैलेंस करते? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करता। समझ गए? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना रहता? ठीक है, अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? mg sin अल्फा। तो फॉर द अबव केस n equals to mg cos अल्फा, एंड एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या रहता? नहीं नहीं नहीं, g sin अल्फा। क्यों? फोर्स mg sin अल्फा है ना, mg sin अल्फा इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ से, तो a इज इक्वल टू g sin अल्फा। समझ में आई बात? ये ऑलरेडी देखे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, रिवीजन के जैसा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ये देखो, वी विल कंटिन्यू नाउ। ये हो गया ना?
अच्छा, और कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? इस केस के बारे में और कुछ बोल सकते हैं? बस ये दो चीजें मालूम कर सकते, राइट? ये दो चीजें मालूम कर सकते, क्या क्या? नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन। और ये ए का डायरेक्शन क्या है बोलो? ए इज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अग्रीड? क्या मैं समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट इधर देखो। Now this is not fixed, this is moving right with acceleration capital A. कैपिटल ए क्यों लेंगे हम लोग? ठीक है, राइट मूव कर रहा बोल के लेंगे, ठीक है? ये राइट पे मूव कर रहा विथ एक्सेलरेशन कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आई बात? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी बोलो, इसमें सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगता? ए का डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। ए इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो सूडो फोर्स किधर लगता? राइट पे। तो सूडो फोर्स में ड्रॉ कर ले रहा हूं यहाँ पे ए। समझ गए? एम ए, एम ए। तो एम को ये बाजू हटा देंगे थोड़ा इधर। हाँ ठीक है, एम को इधर। तो ये एम ए के दो कंपोनेंट्स है अभी, क्या क्या है बोलो? एम ए कॉस अल्फा अप द इंक्लाइंड प्लेन रहता, राइट? तो ये एम ए कॉस अल्फा है, नीचे नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन एम ए साइन अल्फा रहता। तो वो ये ले लेंगे। ये क्या है? थोड़ा बाजू हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होता नहीं तो। हाँ बोलो। एम ए क्या क्या कैंसिल होते? कैंसिल नहीं होते, दोनों ऑपोजिट है। दोनों क्या है? अपोजिट है। कैंसिल कब होते हैं? जब एग्जैक्टली ए की वैल्यू मैच होती तो कैंसिल होते। समझ गए? क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा माइनस, क्या हो रहा, माइनस ए कॉस अल्फा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आई बात? जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द if down the inclined plane if mg, बोलो, mg sin alpha is greater than ma cos alpha। समझ में आई बात? देखो, अगर mg sin alpha की वैल्यू बड़ी है ma cos alpha से, तो कौन डोमिनेट करता? mg sin alpha डोमिनेट करता। समझ गए? अगर इसकी वैल्यू बड़ी है इससे, तो नेट फोर्स इधर आता, तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रहता। समझ गए? एंड इफ, एंड नेक्स्ट क्या है? A इक्वल्स टू, ये इधर ले लो, ये इधर ले लो। समझ गए? ये इधर ले लो और ये इधर ले लो। ये कब होता? इफ समझ गए? एंड A इज जीरो इफ
वो प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी करे ना, दोनों इक्वल रहना। समझ गया? इन ऑल द अबव केसेस, इन ऑल द अबव केसेस, बोलो, n equals to mg नहीं, mg cos alpha प्लस, यही बोले हम। वेरी गुड, हो गया ये? ओके, n कैन नेवर बी जीरो, n कैन नेवर बी zero, hence in the cases above the block never leaves the surface। समझ में आया? ठीक है, समझ में आई ना बात? अब नेक्स्ट, अभी नया सिचुएशन देखेंगे। अभी क्या होता देखो, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये m को बाजू रख देंगे। हाँ, तो ये कौन से डायरेक्शन में रहता? इस डायरेक्शन में रहता, राइट? इसको थोड़ा नीचे कर देंगे जगह बनाने। समझ में आया ना? एक काम करेंगे, लाइट ले लो, ऐसे लो, रेस्ट वाले को लेके बनाएंगे। अभी सपोज एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स राइट है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है। सो लेट मी टेक इट एज ए, ठीक है? नाउ सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में आता? लेफ्ट में आता, तो आई विल टेक इट एज एम ए। समझ में आया? ठीक है, इसके अभी दो कंपोनेंट्स रहते, क्या क्या रहते? एम ए, ये एम ए के एम ए कॉस अल्फा किधर रहता बोलो? ये रहता, समझ गए? ये एम ए कॉस अल्फा है। रीजन क्या है देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेटिंग एंगल है, समझ गए? तो ये अल्फा रहा तो अल्फा के साथ वाला जो है ना कॉस होता, अल्फा के साथ जो नहीं है वो साइन होता। समझ में आई बात? ओके, तो हाँ बोलो, सॉरी कॉस अल्फा होता, ये क्या होता? नहीं नहीं, एम जी साइन अल्फा होता है। ये तो एम जी साइन अल्फा है, पहले कर दिया ना एम जी का। ये होता एम ए कॉस अल्फा, ये होता एम ए कॉस अल्फा। और इधर क्या आता? इधर क्या आता? एम ए साइन अल्फा। क्या आता? एम ए साइन अल्फा। दूसरा कलर लेंगे, ठहरो। ये क्या है? एम ए साइन अल्फा है। क्या है? साइन अल्फा। समझ गए? हो गया? क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? व्हाट विल बी द acceleration of the block down the inclined plane? बोलो क्या रहता?
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सारे एक्सेलरेशन जो फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, वो विद रेस्पेक्ट टू वेट्स फाइंड कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू वेट, इसलिए सूडो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, समझ गए? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम करना है अगर, तो फिर ऐड करना पड़ता दोनों, मैं बताता हूँ बाद में वो। ये पूरे क्या कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू वेट्स मालूम कर रहे हैं सारे, समझ गए? ये भी विद रेस्पेक्ट टू वेट्स मालूम करे पूरा। ये तो खैर फर्क नहीं पड़ता, विद रेस्पेक्ट टू वेट्स मालूम करो या ग्राउंड मालूम करो, क्योंकि एनीवे दोनों भी इनर्शियल फ्रेम थी, रेस्ट पे ही है ना, तो सेम होता। ओके ओके ओके, तो बोलो क्या था, क्या था बोलो? ए इक्वल्स टू, बोलो भाई, ए इक्वल टू नेट फोर्स कितना है इस पे ऐड कर रहा, ये भी इधर ऐड कर रहा, ये भी इधर ऐड कर रहा। देखो ये दो फोर्सेस तो आपको, यू नीड नॉट वरी बिकॉज ये नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए? वेरी गुड। तो क्या है आंसर? एम ए नहीं आता, ए कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा। अच्छा, इधर भी एम ए आता, इधर एम एम आता, एम एम पूरे कैंसिल हो जाता, तो ये ए आता, समझ गए? इज दिस ऑलवेज ट्रू? एक्सेप्शन है इसका कुछ? क्या है एक्सेप्शन? मैं बोलता हूँ एक्सेप्शन क्या है, बोलता हूँ। पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। सो एन ऑफ द ब्लॉक, एन बिटवीन ब्लॉक एंड वेट्स, क्या था बोलो? एन इक्वल्स टू, देखो एन ऊपर की तरफ है तो एम जी कॉस अल्फा एन को बढ़ाता, एम एस साइन अल्फा एन को कम करता, दिखाई दे रहा? सी, एम जी कॉस अल्फा इंक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन, एम एस साइन अल्फा डिक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन। सो व्हाट इज एन इक्वल टू? mg cos alpha increases the normal reaction, ma sin alpha decreases the normal reaction। और ऐसा भी कर सकते हैं, नेट फोर्सेस जीरो रहना तो n प्लस ma sin alpha इक्वल टू mg cos alpha, तो n इक्वल टू ma sin alpha mg cos alpha माइनस ma sin alpha। ऐसा भी कर सकते, कैसा भी कर सकते। यार तो कॉमन सेंस ऐसा करो ना, नॉर्मल रिएक्शन को mg cos alpha बढ़ाता है, ma sin alpha कम करता, तो इट इज mg cos alpha माइनस cos alpha minus ma mg cos alpha माइनस m कैपिटल है साइन अल्फा। समझ में आई बात? ओके, अभी मेरे को ये बोलो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का चांस है? देखो, इफ mg cos alpha is greater than ma sin alpha, that is a is less than g cot alpha, समझ गए? वही होता ना, देन n is पॉजिटिव। समझ में आई बात? देखो, जब mg cos alpha की वैल्यू ma sin alpha से बढ़ के रहती तो n पॉजिटिव रहता, n पॉजिटिव रहता, देयरफॉर दैट इज, कम है तो मैं बोलता हूँ क्या होता, दैट इज ब्लॉक विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट, रेस्ट नहीं, विद द वेट्स। समझ में आई ना बात? ओके, कॉन्टैक्ट विद द वेट्स। इफ n is ठहरो, इफ
ओके, इसका उल्टा लिखना है अभी। इफ mg cos अल्फा इज लेस देन, नेगेटिव आता, मगर एक चीज गौर करो, नेगेटिव नहीं रहता कभी भी, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन, देयर विल बी नो कांटेक्ट। देखो ऊपर चले जाता ना, हवा में आ जाता। अगर एकदम वेट्स निकाल दिया आप, आहिस्ता निकाले तो रहता, एकदम निकाल लिए तो अलग हो जाते दोनों, समझ गए? एक्सेलरेशन अगर जर्क से निकाल लिए एकदम तो क्या होता बोलो? If mg cos alpha is less than ms sin alpha, that is, if g cot alpha, if a is less than g cot alpha, then n is 0 ले लो, क्योंकि नेगेटिव नहीं रहता, n is 0। नेगेटिव देखो, नेगेटिव कब आता नॉर्मल रिएक्शन? जब अगर गम लगा है बीच में, समझ गए? अगर ब्लॉक के और वेट्स के बीच में कुछ एडहेसिव लगा दिए, जब नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो सकता, क्योंकि ऊपर भी जब खींच रहे तो वापस खींचता हूँ। मगर अगर कोई एडहेसिव नहीं है, तो अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा है नीचे के फोर्स से, तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, क्या होता? 0 हो जाता। क्या हो जाता? मैथमेटिकली नेगेटिव हो रहा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली 0 होता, समझ गए? तो दैट इज ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट, समझ गए? लूज कॉन्टैक्ट विद द वेट्स, समझ गए? तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आता? दैट इज ब्लॉक फॉल्स फ्रीली विथ जी। अगर हट गया वेट एकदम तो वो फ्रीली फॉलिंग हो जाता, तो इट फॉल्स विथ जी। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं क्या बोला? एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए इक्वल टू जी कॉस अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा था ना। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आता आपका, क्या क्या आता वो स्टेटमेंट? ये फिर से लिख रहा हूँ, देखो। as long as the block is in contact with wedge, is in contact with the wedge, A equals to ये कब होता? That is when A is less than G cot alpha, A equals to ये है जो आया था पहले, क्या था? A cos alpha plus A cos alpha plus G sin alpha डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, समझ गए? ये क्या है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आया? इन केस, बोलो, इन केस वेयर the block loses its contact with the wedge, कब होता वो? that is when, नहीं, that is, ऊपर देखो, कंटिन्यू करो, that is when A is greater than G cot alpha, A will be equal to G vertically downwards. Why? अगर वेट्स कांटेक्ट लूज कर दिया तो वो फ्रीली फॉलिंग हो जाता, राइट? तो उसकी वैल्यू अभी क्या रहती? जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा नहीं रहती, क्या रहती? जी रहती, समझ गए? क्योंकि इट इज जस्ट ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, समझ में आया? वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग है, क्या है? देखो भाई, ए अगर कम है, स्लोली आप हटा रहे, ए उतना ज्यादा नहीं है, तो क्या होता है? ये नीचे स्लाइड होके आता,
अच्छा, रेस्ट पे जिस पेज से आता ना उससे थोड़ा ज्यादा पेज से आता। रेस्ट पे सिर्फ जी साइन अल्फा से आता, मगर जब ये ए से आप खींच रहे इधर तो क्या आता, जी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा से आता। बट इतना भी ज्यादा नहीं रहना ए के कांटेक्ट ही लूज कर दे। तो अगर ए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, एग्जैक्टली कितनी ज्यादा, जी कॉट अल्फा से ज्यादा है अगर ए की वैल्यू, तो क्या होता, ये ब्लॉक बाजू वेज बाजू सडनली हट जाता और ये नीचे गिर जाता, फ्रीली फॉलिंग हो जाता है। समझ गए? क्लियर? तो ये सारे चीजें चेक करके आंसर करना एग्जाम में। समझ गए? खाली एक फॉर्मूला याद रख लिए, a इज इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, सब्स्टिट्यूट कर दिए आ गए, ऐसा नहीं, चेक करना। अच्छा, इतना भी जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली चेक करो, वो फॉर्मूला यूज करो। अगर उसका पॉजिटिव आंसर आया तो लिख के आओ, अगर नेगेटिव आ रहा आंसर उसका तो आप वो नेगेटिव आंसर मत लिख के आओ, फ्रीली फॉलिंग लिख के आओ। समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन में फाइंड करो आप फॉर्मूला यूज करके। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, mg cos अल्फा माइनस mg cos अल्फा माइनस ma sin अल्फा, mg cos अल्फा माइनस ma sin अल्फा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो लिख के आ जाओ एग्जाम में, मगर अगर नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव वैल्यू मत लिख के आओ एग्जाम में, या उसका मैग्नीट्यूड भी मत लिखो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो है बोल के लिखो। क्या लिखो? नॉर्मल रिएक्शन जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होने के लिए कुछ स्टिक करना पड़ता, एडिसिव लगाना पड़ता, अदरवाइज ब्लॉक और इसके बीच में तो कोई एडिसिव है नहीं, तो नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं आती। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ढकेलता ऑब्जेक्ट को, खींचता नहीं। अगर खींच रहा तो नेगेटिव है, और खींचता एक ही केस में एडिसिव लगाए जब, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही नॉर्मल रिएक्शन की तो इट मीन्स दैट नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। समझ में आया? क्लियर? और 115, ठीक है ना? क्लियर? सफर आईपी का है, आईपी का है तो रिलैक्स करने के लिए लिखते हैं एग्जाम आईपी का, समझे? हाँ। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक। Sir, हाँ बोलो। sir, can you please upload the recorded lecture? Yeah, I'll upload in the evening. I'll upload Okay, sir. by Thank you. 5 or 6. Okay. Thank you.